होता क्या है कि अगर आप ब्यूटी में गलत आपने लिपस्टिक बता दी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का नुकसान होगा। बट अगर फाइनेंस में आपने कुछ गलत बता दिया, लेट्स सपोज किसी ने गलत हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, गलत लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके पैसे जो उसकी सेविंग्स थी या जो उसे गलत टाइम पर काम आने वाले थे वो बर्बाद हो जाएंगे। एज अ कंटेंट क्रिएटर कंटेंट से रिलेटेड हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है बहुत चीज़ों की। How much does someone with 1.7 million followers make? On social media we tend to only highlight the positive sides of our life. Have you ever taken therapy? अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे इसको मैं आंसर करूँ डिप्लोमेटिकली। How many brands have you worked with in the last 4 years as an influencer? 100 plus brands already. एक रील का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करने वाली नेहा नागर, जो कि फिनांस की दुनिया में सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी कोविड के टाइम से और आज आप देखोगे 4 साल में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। इनफैक्ट ये फोर्ब्स पे लिस्टेड है एज वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया। इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने अपना नाम कमाया, कैसे इन्होंने अपने काम को बढ़ाया, कैसे इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, ये सारी की सारी स्टोरी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगी। सो वॉच इट आउट। Neha, I'm so excited to have you on my show, Grow Your Influence. My wife is your biggest fan and she wanted me to communicate this to you. And truly been following your work for 4 years and you've been doing commendable job there. Thank you so much, Sorav. I'm equally excited, and even I have been following you from past 7-8 years, I guess. So yeah, you have been actually one of the inspirations I had before starting my career. So thank you so much. My pleasure. So I remember my wife was showing me a video and then she asked me, do you know this girl? Because she was following you already. I said, no, I don't know her. And I happened to go and see her profile. And then I checked the send message button and there was a message from you already saying that, sir, you've been doing a great work. And then I said, Meghna, she's already knowing me. And it's like, wow, you need to talk to her, you need to follow her. Okay. And that's how the journey began, knowing you, Neha. I've been seeing you working really hard and I'm very proud of that. And I'm sure you've been inspiring many people in this country. And many of them aspire to become like you. So today I'm going to ask you a lot of questions related to your influencer journey. Not much about finance, but because that's something that everybody knows. So are we ready? Shall we get started? Let's go. Fantastic. Financial Influencer of the Year by NDTV. National Award by Ministry of Culture. Top 100 digital stars on Forbes cover. Neha Nagar, how is to live your dream with the power of phone and internet? Oh my god. These are something which I actually haven't dreamed of earlier. But after starting content creation, everything came as a surprise to me. The kind of response I got from the audience, from my parents, from family, from my business. So everything was a big surprise for me and I am very much happy and proud of it that I took the risk, that I took the step of creating my first video and uploaded it actually without thinking much about the consequences or the negative side. And in the first year I also happened to face a lot of criticism from the audience part, some of the audience, but then also I kept on growing. And after first year also there were some other problems in my business, in my personal life, then also I kept going. So now it's have been 4 years already and I'm very proud of myself what I have actually got from this platform. And so big thanks to my audience as well. Amazing. तो आपने सोच रखा था कि ऐसा कुछ होगा? सोचा तो नहीं था एक्चुअली, सरप्राइज था सब कुछ। मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन क्योंकि मैं अपना खुद का बिज़नेस टैक्सेशन है, जो एक टैक्स फर्म थी हमारी, वो प्रमोट करना चाहती थी मैं। लॉकडाउन में कोई दालगोना कॉफ़ी सीख रहा था, कोई डांसिंग सीख रहा था, कोई सिंगिंग सीख रहा था। बट अपन को, मैं उस वक्त इस एज में थी कि यहाँ पर अगर हमने ग्रोथ पकड़ ली तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि शादी हो चुकी थी, अदरवाइज़ वो घर गृहस्थी में घुल जाते हैं, मिल जाता है, एक तरीके से कंफर्ट लेवल में पहुँच जाऊँगी मैं और वहाँ से फिर निकलना डिफ़िकल्ट था।
तो इसीलिए उस वक्त मुझे कुछ स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रॉल करती थी, देखती थी, लोगों से बातें करती थी, क्या किया जा सकता है, नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊँ मैं अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने घर को। तो तब मैंने डिस्कवर किया कि यार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, प्रमोशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज़ बना दी गई है जहाँ पर आप अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हो, अपने मन की भी चीज़ कर रहे हो, और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं और फेम भी मिल रहा है। मतलब Right. हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, बट अगेन करना वही है जो मुझे आता है। मुझे इतना अच्छा डांस भी नहीं आता है, कुछ और मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मेरे को आता था फाइनेंस, मेरा पूरा करियर फाइनेंस में ही रहा है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैंने उस वक्त एमएसएमई पैकेजेस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ था, तो गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्ट के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। तो तब मैंने उन स्कीम्स को, या जो टैक्स रिफॉर्म्स थे, टैक्स की जो डेडलाइन एक्सटेंड हुई थी, 5-6 वीडियोस बनाई थी उनको एक्सप्लेन करते हुए। और कमेंट सेक्शन में मुझे फिर और क्वेरीज पूछी गई, और ऐसी बेसिक सी क्वेरी थी कि आईटीआर क्या होता है, मैं आईटीआर भरूँ कि नहीं, मैं जीएसटी लूँ कि नहीं। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये लोगों को कैसे नहीं पता है, क्योंकि हम अपने वर्ल्ड में, तो ये वर्ल्ड में अपने में ऐसे होता है ना कि सबको सब कुछ पता है, यार ये क्या बेसिक सी चीज़ है, इन पे क्या वीडियोस बनाऊंगी मैं। बट कमेंट सेक्शन ने मुझे इतना मोटिवेट किया, और फिर मैं पूरा फाइनेंस क्रिएटर ही बन गई। अर्लियर जो मोटिव था वो था कि अपना ब्रांड प्रमोट करूँगी, क्योंकि सारी वीडियोज़ में मैं कॉर्नर में अपनी वेबसाइट का लिंक लगाती थी, taxationhelp.in, कि ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर मुझे कॉल करे और मुझे आईटीआर जीएसटी के क्लाइंट्स मिले, और पर क्लाइंट में 1000 या 500 रुपये इतना ही चार्ज करती थी, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करती थी, वहाँ से कमाई हो मेरी। तो स्टार्टिंग के 6 महीने फोकस था, बट 6 महीने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा क्रिएटर इकोनॉमी, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तब मैंने कहा कि लेट्स रीथिंक, शायद अब मुझे पूरी तरीके से इस पर फोकस करना है। एंड देन मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। taxationhelp.in अभी है या बंद हो गया? नहीं, अभी तो बंद हो गया एक्चुअली में, इट्स बीन 4 years ऑलरेडी। नाइस, सो इंस्टाग्राम ने उसको बंद करवा दिया Yeah, बेसिकली, yeah, राइट? yeah. ओके, so what's the mantra behind achieving 1.7 million followers on Instagram and making it to top 100 digital star of Forbes? I think consistency. I have been creating content from last 4 years, and in last 4 years I have tried to actually adapt to the latest trends या latest कुछ भी चल रहा है मार्केट में, मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकूं। अभी मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो डायरेक्ट P2C, मैंने कस्टमर के सामने जो वीडियोस बनाते हैं उस टाइप की वीडियोस बनाने का चालू किया था। फिर धीरे धीरे जब मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने लगी, मुझे पता लगा यार डांसिंग वीडियोस ज़्यादा है या बाकी वीडियोस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश की कि उन वीडियोस को देख रहे तो थोड़ी मेरी भी उन्हीं की जैसी लगनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने उन्हीं की तरह थोड़ा बहुत कुछ मिक्स करने की कोशिश करी, म्यूज़िक पे बना दी, फिल्मी डायलॉग्स पे बना दी, स्किट करना चालू कर दिया। तो उन्हीं सब वीडियोज़ को देखकर बाकी लोगों से मैंने बहुत सीखा है। तो जैसे जैसे और क्रिएटर्स आते गए इंस्टाग्राम पर, या स्टार्टिंग मेरी टिकटॉक से हुई थी, बट वो बैन हो गया 2 महीने में, और 2 महीने ही थी मैं टिकटॉक पे, लास्ट के 2 महीने। देन इंस्टाग्राम पर 0 से वापस स्टार्ट किया था, तो सीखती रही मैं। तो आई थिंक सीखते रहना चाहिए, जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कर रहे हो पूरी शिद्दत से, और अपने आप को अडेप्ट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिजिड हो रहे हो कि यार मैं तो P2C बनाती हूँ तो वही बनाऊंगी। एक टाइम के बाद शायद नहीं चला तो मैंने एक्सप्लोर किया कुछ और, इंस्टाग्राम नहीं चला तो मैंने यूट्यूब भी ट्राई किया, मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म ट्राई किए, लिंक्डइन पे मेरे 1 लाख है, ट्विटर पे, हर जगह आई एम, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पर ही अवेलेबल हूँ मैं, सब जगह पर हूँ। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग टाइप का कंटेंट चलता है, तो अलग टाइप का कंटेंट ही मैंने बनाया है। तो इसी वजह से शायद 4 साल बाद भी ऑडियंस मेरे से रिलेट कर पाती है। अब 4 साल पहले का जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा टैक्स बेस्ड था, टैक्सेशन, आईटीआर, जीएसटी, फिर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का, मतलब फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, फिर स्टॉक मार्केट, फिर पर्सनल फाइनेंस, और आजकल क्योंकि अब मैं खुद, मेरी लाइफ में वही चल रहा है ना, फैमिली फाइनेंस है ना, चाइल्ड के लिए फाइनेंशियली कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने वैसे टॉपिक्स लेके आई हूँ मैं। तो उससे ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि जो मैं एक्चुअली में कर रही हूँ, मैं वही कंटेंट बना रही हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, जो सबको रिलेटेबल लगे, वैसा कंटेंट, ना कि सिर्फ बुकिश। तो इन वजह से जो ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक लगना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आप खुश होने चाहिए, और आप अडेप्ट करते रहने चाहिए, तो इस वजह से शायद ये सब मेरे को अचीवमेंट्स मिली। I think one of the reasons why my wife follows you because she says that it's very relatable, क्योंकि वो finance handle करती है मेरे business का, so she can relate to whatever you try to say.
So I can understand कि relatability is one of the biggest factors that why people like to stay connected with you. You know, one of the things I've noticed, कितना time आप spend करते हो Instagram पे on an average every day? स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हाँ, हैं। मैंने नोटिस किया क्योंकि बहुत जगह पे आप कमेंट्स करते हो तो रील्स में को या नेहा नगर का कमेंट्स सिस्टम तो एटलीस्ट दिन में 20-30 कमेंट्स तो आपके होते हैं, तो सारे रील्स आज जो अगर कोई किसी को फॉलो करता है, या वो किसी पे तो कमेंट दिख करता है जाती तो उसका वो रील तो आता ही है। तो मेरे फीड पे हर दिन नेहा नागर का कमेंटेड एक रील तो आता ही आता है। एक्चुअली ये भी एक स्ट्रेटजी है, मेरी बहन ने मुझे सिखाई, शी इज़ ऑल्सो क्रिएटर। तो उनके चैनल पे अच्छी रीच नहीं आ रही थी जैसे पहले आती थी, तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, वो बहुत सारे रील्स पर जो ट्रेंडिंग रील्स है उन पर रेलेवेंट कमेंट करने लगी, लंबे लंबे कमेंट्स, ऐसा नहीं सिर्फ इंटरेस्टिंग या थम्स अप, ऐसा नहीं, प्रॉपर उसी टॉपिक से रिलेटेड। एंड धीरे धीरे उसने मेरे को बताया कि उसके पर डे 2-2 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ने लगे। मैंने कहा कितनी सही ट्रिक है ये। तो फिर मैंने कहा कि स्क्रॉल तो हम करते ही है, इससे डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है। एक तो हमें भी हो रहा है, हमें थोड़ा सा रीच वापस मिल रहा है, ऑडियंस को हमारा नाम बार बार उनके सामने जा रहा है, तो ऑडियंस को याद रहेगा अच्छा नेहा नागर, तो जितना दिखेंगे हम उतना बिकेंगे। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, जिसने कंटेंट बनाया उसको अप्रिशिएशन मिल गया या अपना ओपिनियन हमने बता दिया वहाँ पर। और तीसरा, हमें फायदा हो रहा है, ऑडियंस को भी मिलने को मिल रहा है कि यार जो हम देख रहे हैं वो हमारा जो फॉलोअर है, जो हमारा इन्फ्लुएंसर है वो भी देख रहा है। राइट, वो हमारे पोस्ट पे कमेंट कर रहा है। करेक्ट। मैंने नोटिस किया कि ये कमेंट्स में कुछ 10-10, 20-20 हजार लाइक्स भी रहते हैं। हाँ, एक्चुअली sometimes more than the reel, the comment is doing a good job of it. अच्छा, you started your journey as a model 4 years back. When you started your journey as an influencer, what was running in your mind? How did you choose this? जैसे मैंने बताया, बिजनेस फर्स्ट, तो रीज़न यही था कि बिज़नेस प्रमोट करना है, बट कहीं ना कहीं वो ड्रीम था जो रह गया अधूरा। जैसे मैं पहले काफ़ी सारे ऑडिशंस देती थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि फिल्मों में या कहीं एक्टिंग में कुछ रोल मिल जाए यार, मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई भाग जाऊँ। तो बट वो हुआ नहीं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगे थे जो मैंने किए भी थे। एक प्रिंट एड था जो मैरी कॉम मैम के साथ हमने किया था, ब्रांड का नाम था इंडिया करके, खादी इंडिया कुछ करके था, तो उनके साथ किया था। तो वो याद करके प्राउड फील होता है कि अच्छा ठीक है, उसमें भी मैंने कुछ तो वैल्यूएबल किया है। जी म्यूज़िक एल्बम की थी एक, भूल हम जाएंगे। तो उसके बाद लेकिन जॉब लग गई, शादी हो गई, तो काफ़ी चीज़ें छूट गई पीछे। एंड देन वो था हमेशा से माइंड में ना कि वापस से कुछ ऐसा करेंगे। कंटेंट क्रिएशन फिर ऐसा आया कि जितने भी हमारे इंडियंस है ना, इंडियन यंगस्टर, सबका ड्रीम होता था कि हम बॉलीवुड में एंट्री लेंगे, बॉलीवुड म्यूज़िक पे हमारी भी वीडियोस बनेगी। तो इंस्टाग्राम या टिकटॉक की वजह से सबके कहीं ना कहीं सपने पूरे होने लगे ये सारे ना। तो वैसे ही हमारा भी सपना वो पूरा होने लग गया। हम भले ही टैक्सेशन वाली वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड वाली जो फैन गर्ल थी ना, वो अंदर जिंदा थी। इस वजह से मैं मिक्स करने लगी चीज़ों को, और अपना जो ड्रीम था एक्टर बनने का, हम बन ही गए कहीं ना कहीं एक्टर। है ना। तो अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंस का कंटेंट, बट वो बोरिंग तरीके से नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिंग करके। तो अपना भी फायदा हो रहा है यार, एक्टिंग करने को मिल रही है। The idea of adding drama to a serious subject like finance, where did this idea come from? Was Bollywood your biggest inspiration? Yes. तो हम सबके अंदर बॉलीवुड फैन है ना, तो कुछ मूवीज़ होती है जो हमें हद से ज़्यादा इंस्पायर करती है। जैसे रीसेंट टाइम्स में हमारी ये जवानी या दीवानी हो गई, या ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा हो गई। तो हम अमीर भी बनना चाहते हैं, हम यंग एंथुसियास्टिक ट्रैवलर भी बनना चाहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो था कि एक बिजनेस वुमेन करके मैं बनूंगी और आगे जाऊंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। तो उस करके मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। और तो जैसे मैंने बताया कि कोविड टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले, कोविड से पहले स्टिल हम मैनेज कर पा रहे हैं कि क्लाइंट से मीटिंग हो रही है, कॉल पे बातें हो रही है। बट कोविड के वो जो 2 महीने हैं, तो क्लाइंट बोलते हैं कि बाद में आना, बाद में बात करते हैं, बाद में मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पर एक सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी था कि अब क्या, अब क्लाइंट बेस कैसे बढ़ाएंगे। तो हमने सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, एड रन करने का हमने सोचा था। इससे हमारा बिजनेस तो बिल्ड हो जाएगा, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग नहीं होगी, और ब्रांड बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आई थिंक है ही नहीं। इसीलिए स्टार्ट किया और बॉलीवुड को मिक्स करते गए, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी बनता गया। आई थिंक दैट्स व्हाट इज फन अबाउट योर कंटेंट, क्योंकि वो इतना मसालेदार है
कि उसको कंज्यूम करने में लोगों को बहुत मजा आता है? मैं खुद अपनी वीडियोस को देखती रहती हूँ बार 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 बार। और ऐसा होता है कई बार कि मैं वीडियोस बना लेती हूँ, टॉपिक, रील, स्क्रिप्ट एडिट हो जाएगी और मुझे रिजल्ट पसंद नहीं आता है, तो मेरे पास इतनी सारी बल्क में वीडियोस पड़ी हुई है जो मैंने अपलोड ही नहीं की क्योंकि मेरे को वो रिजल्ट पसंद नहीं आया, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं आया। और मुझे ये भी बहुत पसंद है, जैसे क्योंकि बॉलीवुड फैन तो मैं हुई कि इस एंगल से लेती हूँ, इस बार इस एंगल से लेती हूँ, वो तो वो प्रोडक्शन वाला काम भी, वो फिल्मोग्राफी, वो भी, Direction. हाँ डायरेक्शन वाला काम भी, वो भी आई एंजॉय एक्चुअली डूइंग इट। So you are the Karan Johar of your business. ऑफ कोर्स वी हैव टू, क्रिएटर सब कुछ होते हैं ना। सही बात है। तो करण जौहर भी हमारे अंदर, संजय लीला भंसाली भी है, तो हम खुद ही अपनी हीरोइन बन जाते हैं। Nice. I like the idea of हम खुद ही हमारी हीरोइन बन जाते हैं। You know, I'm little rigid when it comes to content creation, but I take this inspiration that I'll add drama because a lot of creators there are little conscious about not adding drama because they think that's just not them. बट अगेन कंटेंट क्रिएशन हैज टू बी अबाउट यू, आपको जो मजा आ रहा है। सही बात। किसी को अगर P2C में मजा आ रहा है डायरेक्ट बात करने में, ऑडियंस से डायरेक्ट बात करो ना प्लीज। किसी को मजा आ रहा है कि हम खुद के भी सपने पूरे कर रहे हैं फिल्म डायरेक्शन के या हीरोइन बनने के और साथ में फाइनेंस और कंटेंट है, तो प्लीज वो करो, जिसमें मजा आ रहा है वो करेंगे तो ही तो हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज 6 महीने हमारा कंटेंट चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, लेकिन 4-5 साल शायद नहीं चल पाए। सही बात। और कंटेंट क्रिएशन में लंबा टिकना इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अदरवाइज एल्गोरिथम की वजह से मैं बहुत सारी क्रिएटर्स को देखती हूँ जो 1 महीने में 1 लाख हो गए फॉलोअर्स या 2 लाख हो गए, बट दोज आर जस्ट नंबर्स। आप कम्युनिटी बिल्डिंग की जब बात करोगे तो यू हैव टू बी योरसेल्फ। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे अपने कंटेंट के साथ उतना ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकोगे और आपके पास लॉयल ऑडियंस आएगी, और लॉयल ऑडियंस आपके पास आ गई तो आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। सही बात है, राइट। It's not about followers, but it's about relevant followers. Yes. Amazing. हम सबके जर्नी में as creators, there's always that one reel that makes you hit. Which was that one reel of yours? देयर वर मैनी एक्चुअली। जैसे मैंने बताया कि मैं रीनोवेट करती रहती हूँ अपने आप को, तो बिग हिट सबसे पहली वाली रील जो मैंने अपलोड ही कर दी थी, तो जो हिट थी फर्स्ट रील आपकी? फर्स्ट रील, हाँ। मतलब फर्स्ट रील में आपका एकदम करेक्ट। मैं आपको बताऊं, टिकटॉक जो मैंने चालू किया तो 2 महीने में मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। सो इट वाज अ बिग हिट फॉर माई सेल्फ और बहुत बड़ा सरप्राइज था। फिर बैन हो गया, बहुत बड़ा सेटबैक था, है ना। वो डिप्रेशन टाइप का हो गया था, मुझे फील किया यार कि क्या हो गया है। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करेंगे कुछ। फिर आई थिंक 30 दिन बाद ये नवंबर में ये चालू हो गया था रील। तो वहाँ से उस वक्त मेरे पास 3000 फॉलोअर्स थे, जो मैंने टिकटॉक पे लास्ट वीडियो डाला था कि भाई टिकटॉक बंद हो रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो वहाँ से 3000, क्योंकि लास्ट में वीडियो डाला उस पर 5-6 हज़ार थे, क्योंकि तभी बंद हुआ था उसी दिन, सेम डे। तो ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं, तो वहाँ पर 3000 फॉलोअर्स आ गए। तो 3000 से फिर मैंने 6 लाख किए 6 महीने में। वाओ। तो तब भी 1 लाख बढ़ रहे थे। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि मेरा कंटेंट अच्छा था, ऑनेस्टली इसका रीज़न ये भी है कि उस वक्त सभी लोग तो घर बैठे थे। ऐसा उस वक्त नहीं बैठे थे, बट सभी लोग एक तरीके से पॉज वाले मूड में आ गए थे। और इंडिया में फाइनेंस को लेकर ना थोड़ा सा जागरूकता बढ़ रही थी। लोग चाहते थे कि हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई बताए। कोविड की वजह से लोगों को ये फील हो गया था कि कितना ज़रूरी है उनके पास इंश्योरेंस होना, कितना ज़रूरी है उनके पास इमरजेंसी फंड होना, कितना ज़रूरी है उनके पास एक जॉब के साथ साथ दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम होना। तो इस वजह से उनके मन में बहुत सारे सवाल थे फाइनेंसेस को लेकर, तो वो मैंने सॉल्व किए। मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे, बट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। तो मेरे अलावा काफ़ी क्रिएटर्स थे, बट वो बिजनेस या मोटिवेशन या सेल्फ हेल्प टाइप की वीडियोस बना रहे थे, बट कोर फाइनेंस वाली सिर्फ मैं ही थी जिसने ये स्टार्ट किया था शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर। लॉन्ग वीडियोस में काफ़ी सारे क्रिएटर्स थे, रचना मैम थी, प्रांजल सर थे, काफ़ी सारे थे। तो उस वक्त जब डिमांड इतनी ज़्यादा और सप्लाई कम हो, उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स इतनी जल्दी बढ़े। लेकिन 6 महीने बाद फिर काफ़ी क्रिएटर्स आ गए, बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स आ गए। तो वहाँ पर फिर उसके बाद 6 लाख से मेरे 1.5 मिलियन होने में बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैंने भी अपने आप को स्लो डाउन किया। जैसे मैंने बताया, पहले मेरा टैक्सेशन हेल्प मोटिव था, फिर मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन को अब सीरियसली लेते हैं। पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो तब स्लो डाउन करके धीरे धीरे मैंने रिनोवेट किया, अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाई। पहले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वीडियोज़ की प्रोडक्शन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे वो इम्प्रूव की मैंने।
तो इस वजह से, और हर बार मैं चेंजेस कर रही हूँ, इस वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए और मुझे भी मज़ा आता रहा. Amazing. What's Neha Nagar like at home before becoming famous and after becoming famous? बिफोर तो आई वॉज वेरी रेस्टलेस. मैं बहुत पैशनेट थी स्टार्टिंग से. फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जिस अपब्रिंगिंग से आती हूँ वहाँ लड़कियाँ इतना पढ़ती ही नहीं है या बाहर नहीं निकलती, मतलब जॉब नहीं करती, पढ़ लेंगी पर जॉब फिर भी नहीं करेगी. तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था कि यार मेरे को तो करना है, मेरे को तो इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे को तो जॉब करनी है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशन था. बट क्योंकि मैं सीए का कोर्स भी कर रही थी, जो किसी तरीके से मैं फाइनल वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, तो वो सेटबैक था, थोड़ा सा एंग्जाइटी थी, वो बहुत डर था अंदर कि कुछ हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, बहुत कुछ अंदर बेचैनी से तूफान सा चलता था पहले बिफोर कंटेंट क्रिएशन. अंडर कॉन्फिडेंट है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी. बट थैंकफुली कंटेंट क्रिएशन के बाद 6 महीने बाद जब मुझे 600 के मेरे हो गए 6-7 मंथ्स लेटर ऑन, तब मुझे थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट सा फील होने का लगा कि मैं शायद अब सही रास्ते पे हूँ. उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे मॉडलिंग, एक्टिंग, मैंने वेल्थ मैनेजमेंट में जॉब की थी, मेरी शादी भी हो गई, तो बहुत ज़्यादा लाइफ उथल पुथल वाली लाइफ थी. क्लैरिटी नहीं थी है बेसिकली. ना, क्लैरिटी नहीं थी. राइट. बट आफ्टर लेटर ऑन फिर जब रियलाइज हुआ कि यही सब कुछ है, फिर यहाँ मैंने अपना 1000% दिया और धीरे धीरे मुझे रिजल्ट आने लगे और मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल, माइंड में सब कुछ सॉर्ट हो गया. एंड आई एम लाइक कि अब मुझे कोई गाली भी दे रहा है तो सो के देते रहो. उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा था उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ये तो पता था कि जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं स्टेज पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं कॉलेज में स्टेज पर गई थी और मुझे, क्योंकि जब मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही थी तो घर से किया था सब कुछ. 3-4 साल मैं घर पे रही थी, 12th के बाद कोचिंग होती थी. बट फिर जब वो क्लियर नहीं हुआ तो मैंने कहा एमबीए कर लेते हैं, तो मैंने दिल्ली से एमबीए किया. अब मुझे लगा कि यार ये 2 साल ही है मेरे पास, उसके बाद जॉब लग जाएगी या फिर शादी हो जाएगी, तो इन 2 साल में अपना एटलीस्ट इन्जॉय करती हूँ लाइफ को. तो तब मैं क्या करती थी कि जो भी कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं सब में पार्टिसिपेट करना है मुझे, ई सेल के हो या फिर कल्चरल हो या फिर डांस वाले हो, सब में. तो मैंने डांस वाले में किया था. तो डांस इतना अच्छा आता नहीं था, बट मेरे को पार्टिसिपेट करना था. तो मैं डांस कर रही हूँ तो कुछ लोग हंसने लगे. तो जनरली थोड़ा सा अंदर से फील तो हुआ कि यार क्यों हंस रहे हैं या मेरी बेइज्जती हो रही है. बट मैंने सोचा कि मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ ना, कंटिन्यू डूइंग. तो मैंने कई सारे इवेंट्स में फिर भी पार्टिसिपेट किया. मुझे पता था कि पीपल डोंट लाइक मी या पीपल डोंट लाइक माई डांस, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरी बेइज्जती होगी. बट आई स्टिल केप्ट ट्राइंग कि यार ये जो बेइज्जती वाला जो डर है ना, ये मेरे को अपने अंदर से निकालना होगा, तभी मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगी या लाइफ में कुछ कर पाऊंगी. तो मैंने बहुत ऐसी जगह पार्टिसिपेट किया. जब वो एकदम फील हो गया ना कि बेइज्जती से मुझे कुछ डर ही लगता, तब मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब ठीक है, अब मैं कुछ और अच्छे से कर सकती हूँ. Amazing. I think first we need to kill the negativity in our mind. That's what I believe. क्योंकि फिर जब हम हमारी खुद की नेगेटिविटी किल करते हैं तो जब लोग कुछ हमें बोलते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. और इंस्टाग्राम या कंटेंट क्रिएशन ये हमें अच्छे से सिखाता है, क्योंकि हमारी सबसे अच्छी वीडियो पे भी नेगेटिव कमेंट्स मिल ही जाएंगे. Right. तो यहाँ पर तो आप कैसा भी कंटेंट पुट आउट कर लो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी ही होगी. तो अगर नेगेटिविटी पे हम ध्यान देने लग गए तो कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे उसके बाद. तो ये काफ़ी अच्छे से हमें ट्रेन कर देता है ना इंस्टाग्राम. So true. Instagram makes you realize your flaws. Yeah. People will make you realize your flaws. जो आपको पता भी था चाहे ये तुम्हारे में फ्लॉ है, लोग ढूंढ के निकाल के दे देते, देखो भाई ये तुम्हारे में फ्लॉ है, तुम्हें रियलाइज करवाते, एंड देन यू रियलाइज हो अरे हाँ ये तो मेरे में फ्लॉ है, हमें पता ही नहीं था. हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान देने लग जाएंगे बार बार फ्लॉ पे ही, तो हम अच्छी से फोकस नहीं कर पाएंगे. एक बार जान लो कि फ्लॉ है, अगर उसको इम्प्रूव कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो बार बार उसके बारे में ना सोचो. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि सबकी आइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. और कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा रियलाइज तभी होता है जब वो कैमरा वीडियोस बनाते हैं. राइट. अब मुझे कभी फील नहीं हुआ रियल लाइफ में, कभी किसी ने फील भी नहीं कराया, कभी सब बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं. लेकिन कंटेंट क्रिएशन में पहली वीडियो आपने डाली और तुरंत आपको पता लगता है कि आपके आइज में डिफरेंस है. मेरे साथ ही है, जितने मैं कंटेंट क्रिएटर से बात करती हूँ सबके साथ ही होता है. तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते ना. अब मैं हर बार हर एक कमेंट मेरी वीडियो पे आता है, एक ना एक लोग फिर भी कर देंगे ना कमेंट. अब मैं हर बार अगर उसी बारे में सोचती रहूंगी तो मैं कब तक, कितने साल इसको लेकर परेशान रहूंगी. तो इट्स बेटर कि अगर कुछ इम्प्रूव कर सकते हो इम्प्रूव कर लो, अदरवाइज इग्नोर करो. इम्प्रूव वैसे करते रहो कंटेंट में, एंड
आप फिर अच्छे से I think you should be known for your value and not for the looks is what I feel. Yeah. A lot of people comment on my reels saying कि आपकी आवाज लड़कियों जैसी है. Oh. That's like a most common comment. But ऐसा नहीं है. That's how it comes to people. So I said, yeah, thank you. That's the only thing I just said. It's a big shock for me. And I always reply, मुझे पता है. So that's basically all about it. Okay. So I'm just saying, I have this habit. वही है ना कि हमें पर्सन में हम जानते हैं तो हमें फ्लॉ नजर नहीं आते हैं, बट वो सोशल मीडिया वाले ढूंढ के एकदम निकालते हैं. हाँ. So I have this habit. I tell this to my students. जब and I teach them about Instagram growth and Instagram followers को कैसे बढ़ाना है. I first make them write down all their flaws that they feel is a flaw. And I say, now make friends with them. Because it's very important. Otherwise, this is the thing that's going to haunt you all your life. Because that's what people will find and tell you. So once they realize कि ये मेरे flaws है, मैंने बोला अब इसके अलावा तुम्हें 10 flaws और मिलेंगे, वो तुम्हें audience बताएगी. And then start writing them down too. क्योंकि इसके अलावा कोई flaw होगा नहीं. जो 20 फ्लॉज हो गए वो फ्लॉ है, 10 तुम्हें पता थे, 10 तुम्हारी ऑडियंस ने तुमको बताए. अब उसके आगे तुम्हें उस पर काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता पड़ गया तुम्हारे फ्लॉज हैं. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. दैट्स व्हाट वी कैन डू एट द एंड ऑफ द डे. बट आई थिंक आई रियली लाइक ऑफ दिस फैक्ट जो आपने बोला कि हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड, एंड हाउ यू सेड दैट पीपल डिडंट लाइक टू सी यू डांसिंग बट यू केप्ट डांसिंग बिकॉज यू एंजॉयड डांसिंग. And that's what it takes. I call this word as outrageous, where you just go and put yourself as a raw person in front of public. Now you judge me the way you want to judge me. I really appreciate this thought there. So, what's your content planning schedule like? How do you plan your content? Okay. So early on जब हम starting phase में थे तो मैं daily ही videos डालती थी. तो पहले तो ये था कि first 2 years तक कि कंटेंट मुझे समझ में आया, जिससे कमेंट से पता लग जाता है कि लोगों को ये जानना है, और मैंने उस पर रिसर्च किया, वीडियो बनाया, सेम डे स्क्रिप्ट लिखा, सेम डे एडिट किया और सेम डे डाल दिया. तो पहले ऐसे चलता था. फिर 2 साल बाद मैंने सोचा कि लॉन्ग टर्म में ऐसा सस्टेन नहीं कर पाऊंगी मैं ना, कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ एक तो, और सेम डे ही सब कुछ हो रहा है, तो वो प्रेशर भी होता है कि यार कुछ तो जाना चाहिए आज. तो फिर मैंने थोड़ा स्लो डाउन किया 2 साल बाद, टीम भी हायर की प्रॉपर, और स्क्रिप्टिंग के लिए, इवन एडिटिंग के लिए भी प्रॉपर टीम सेटअप की, और टाइमिंग और नंबर ऑफ वीडियोस की फ्रिक्वेंसी भी डिसाइड की कि 30 दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. पॉसिबल हो पाएगा मैक्स टू मैक्स मेरे से 12 से 15 वीडियोस ही, 12 या 15 वीडियोस. तो ये हमने डिसाइड किया कि 12 इज़ ओके, 12 में इनफ है, क्योंकि अब हमने एटलीस्ट ब्रांड नेम तो बिल्ड कर लिया है, अब हमें सिर्फ क्वालिटी का कंटेंट देना है. तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली रिसर्च अ लॉट, क्योंकि फाइनेंस में क्या होता है, अगर एक कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो किसी एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है और दूसरे के लिए वो सही भी हो सकता है. पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल. आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं किसी और के लिए सही है. तो हमें कंटेंट को जेनरिक वे में इस तरीके से पुट आउट करना होता है कि कहीं ना कहीं वो सबके लिए सही फिट हो, या जो हम समझाना चाहते हैं एटलीस्ट वो समझ जाए. वो कई बार लोग मिस इंटरप्रेट भी कर देते हैं मैसेजेस को, और जब आप फाइनेंस में कुछ गलत बता देंगे तो होता क्या है कि अगर आप ब्यूटी में गलत आपने लिपस्टिक बता दी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का नुकसान होगा, है ना. बट अगर फाइनेंस में आपने कुछ गलत बता दिया, लेट्स सपोज किसी ने गलत हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, गलत लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके पैसे जो उसकी सेविंग्स थी या जो उसे गलत टाइम पर काम आने वाले थे वो बर्बाद हो जाएंगे. राइट. तो इट्स अबाउट लाइफ एक्चुअली फाइनेंस. तो यहाँ पर आई कैन नॉट पुट आउट एनीथिंग आई वांट, यहाँ पर मुझे रिसर्च बहुत ज़्यादा करना होता है. तो इसीलिए नाउ वी टेक एटलीस्ट 2 to 3 days फॉर अ वीडियो, सिंगल वीडियो, जिसमें हम टॉपिक्स तो हर रोज़ हम डिसाइड करते रहते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है तो उसका एक बंच बना लिया कि ये टॉपिक्स हम करने वाले हैं. फिर हर एक टॉपिक पे 2-3 दिन काम होता है, जिसमें हम पहला एक्चुअली हुआ ये कि रिसर्च करते हो हर टॉपिक पे. आप research. अकेले करते हो, आपकी टीम साथ में हम करती है? 3 लोग हैं एक्चुअली. अच्छा, अमेजिंग. हाँ. तो हम लोग करते हैं रिसर्च.
तो जैसे टॉपिक, मेजरली टॉपिक्स तो मैं बता रही होती हूँ टीम को, तो टॉपिक हमने बता दिया, मैंने उनको बता दिया कि मुझे ना ये ऐसे ऐसे चाहिए होगी स्क्रिप्ट, आप प्लीज इसको डबल वेरीफाई कर दो कि जो मैं बोल रही हूँ वो आज के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है कि नहीं, या आज भी वो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ, जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ, आज भी वो ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे मैंने पहले पढ़ा था, जैसे मैं जानती थी। क्योंकि हम जो पहले 2 साल पहले पढ़ चुके हैं, 2 साल पहले हमने कुछ बात सुनी थी, जरूरी नहीं आज भी वो वैसे ही एप्लीकेबल हो। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे वो डबल वेरीफाई करनी होती है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि स्टाइल फिक्स है, हम 2 साल से एक्चुअली वीडियोस मतलब जब हमने ये टीम सेटअप किया उससे 2 साल पहले मैं वीडियोस बहुत सारी बना चुकी हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट में एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। तो फॉर्मेट एक्चुअली फिक्स हो गए थे कि अच्छा ऐसा कोई टॉपिक आया जो लेटेस्ट चेंज वाला है तो उसका फॉर्मेट ये है, अच्छा ऐसा कोई टॉपिक आया तो उसको इस वाली रील का कॉपी पेस्ट मारना है, फॉर्मेट। नाइस। तो हमारा बहुत कुछ फिक्स है, ऐसा नहीं कि हम फॉर्मेट में मत्था मार रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया, है ना। तो 6-7 हमने फॉर्मेट्स बना लिए। एक फेनोमेन करके फॉर्मेट था हमारा, उस पे कि बस एक क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं कुछ भी खा रही हूँ पी रही हूँ और आंसर कर रही हूँ, दैट्स इट। तो एक सिंपल सा ये फॉर्मेट हो गया। तो इस फॉर्मेट में कौन सा स्क्रिप्ट या कौन सा टॉपिक फिट होगा वो हमें फिर सॉर्ट आउट करना है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली स्क्रिप्टिंग में। फॉर्मेट्स हमारे फिक्स है एक्चुअली में, 5-6 फॉर्मेट है जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियोज़ उन पर और हिट रहे, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो हम क्या करते हैं, नए टॉपिक्स उन्हीं फॉर्मेट्स में डालते हैं। जो ज़्यादा काम अब रहता है हमारा, दैट इज़ रिसर्च, कि जो हमने पहले बताई है बात या जो हम पहले पढ़ चुके 1 साल पहले 2 साल पहले, अभी वो रिलेवेंट है कि नहीं, अभी वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हम काम करते हैं। एंड देन वीडियो में, क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसको शॉर्ट करने में बहुत टाइम जाता है। फिर एडिटिंग में भी तो फॉर्मेट्स, क्योंकि 2 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है रील्स बनाने की, उस सब में बना ही दिए थे मैंने। तो अब टीम जब मैंने हायर की तो उनको बस एक्सप्लेन किया कि भाई मैं तेरे को टॉपिक भी दूंगी, मैं तेरे को फॉर्मेट भी दूंगी, तुझे सिर्फ रिसर्च का काम करना है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है फ़ोन पर या वॉइस मैसेज पर, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये मैम सही बोल रही है कि नहीं, नेहा सही बोल रही है कि नहीं। तो ऐसे, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा काम होता है एक्चुअली फाइनेंस के बारे में किसी को एजुकेट करना, तो यू हैव टू बी डबल श्योर। तो वो डबल श्योर के लिए टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो एक फ्रिक्वेंसी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप 12 ही वीडियोस कर पाओगे पर मंथ। स्ट्रेच मत करो कि 30 सोच ले, किसी महीने फिर 20 जा रही है, किसी महीने 25 जा रही है, तो उससे आपको भी किसी महीने अगर 12 ही गई, सोचा था 25 जानी चाहिए थी, डिमोटिवेशन आप ही को होगा, आप अच्छा नहीं फील करोगे। जब आपको पता है कि 12 ही डालती हूँ यार मैं तो, और 12 ही गई है, तो ठीक है ना, आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो आई थिंक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अमेजिंग, गुड थॉट्स देयर कि किस तरीके से आप कंटेंट खुद इंटरेस्टिंगली प्लान करती है, बट वेरिफिकेशन के लिए यू हैव पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिनांस बेस्ड डेटा है, यू कैन रिस्क पीपल्स लाइव्स ऑन दैट। अमेजिंग थॉट्स देयर। सो आप क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो रील्स बनाने के लिए? यार मेरा आईफोन है आईफोन है 14 प्रो मैक्स, वो अभी लिया है मैंने रिसेंटली। उससे पहले एंड्रॉयड था और रोड के माइक्स है, ये इक्विपमेंट हो गए मेरे। हाँ, मैं डे लाइट में शूट करती हूँ एक्चुअली। डे लाइट में मुझे वाइब आती है फिल्म वाली, क्योंकि फिल्म में सेटअप नहीं होता कि आप एकदम से लाइट्स लगा के बैठ गए, वहाँ पे एकदम नेचुरल चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिल्मी ही हूँ, मेरा नाम भी फिल्मी फाइनेंस है, तो फिल्मी रखना है तो मुझे दिन में ही शूट करना पड़ेगा, रियल लोकेशंस पे जाके शूट करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। एक हाँ ट्राईपॉड भी है मेरे पास, तो ये है। और मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने बीच में जो मेरा एडिटर है उसको बुलाया था कि भाई तू करा दे शूट, बट उसमें मुझे इतना उसका टाइम वेस्ट होता था एक्चुअली, क्योंकि मैं ऐसे भी शॉर्ट चेक कर रही हूँ, ऐसे भी चेक कर रही हूँ, उसको मैं ही बता रही हूँ, उसको लग रहा है कि मैम मुझे बता रही है, मेरा इनपुट नहीं ले रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है तो एडिटिंग ही करवा सभी मैं देख लूँगी ये सब। तो मैं एडिट कर देती हूँ, ड्राइव पे अपलोड कर देती हूँ, वो एडिट कर देता है और वो बाकी चीज़ें देख लेता है। ब्यूटीफुल, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे यार बेस्ट कैमरा खरीदना है, बेस्ट लाइट लेना है, बैकग्राउंड अच्छे होने चाहिए, जब जाके रील बनाऊंगा। वो कभी आता ही नहीं, वो डेट ही नहीं आता उनका, बिकॉज दे बिलीव इन परफेक्शनिज्म। ऑल्सो काफ़ी लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। मतलब 1 महीने कंटेंट प्रोड्यूस किया
व्यूज़ नहीं आ रहे हैं एंड छोड़ दिया, फिर कभी कभार डाल रहे हैं, डाल दिया मन किया तो। अगर ऐसे हम चलेंगे तो बहुत लेट जाकर आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे, सक्सेस मिलेगा कंटेंट क्रिएशन में। अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलोगे कि मेरे को तो भाई 12 वीडियोस डालनी है हर महीने, चाहे क्वालिटी कैसी हो, चाहे कैमरा कैसा ही हो मेरे पास, चाहे मेरी शक्ल में पिंपल आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट मुझे 12 वीडियोस डालनी तो मैं तो डालूंगी। तब ऐसा लॉन्ग टर्म में आप 6 महीने भी करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। तो क्विट मत करो प्लीज, प्लान के साथ चलो। अमेजिंग। तो आपका टीम में कौन कौन लोग हैं? और टीम में जैसे मैंने बताया कि एक है, I'll repeat the question, मेरा हिंदी बहुत ही गलत चलेगा यहाँ माय पे। गॉड, हाँ या आपका टीम में ये प्रॉपर साउथ वाला है। नहीं, ये तो एकदम वो आपका और team में औरी वाला और ही वाला आ गया। हाँ, मैं Right. कह रही थी कि कुछ तो याद आ रहा है मेरे को। ओके, सो नेहा आपकी टीम में कौन कौन है? ओके, मेरी टीम में एक एडिटर है, वीडियो एडिटर, जो सिनेमेटोग्राफर भी है। एक्चुअली मैंने उसको हायर इसलिए किया था कि मैं उससे शूट भी करा लूँगी, बट मैं इवेंचुअली शूट खुद ही कर रही होती हूँ। तो ही इज़ एडिटर, वो एडिटिंग करता है रील्स की या जो भी मेरा सारा काम होता है। फिर एक है मेरा टीम मेंबर अविनाश, जो मेरा ट्विटर और लिंक्डइन दोनों ही प्लेटफॉर्म देखता है। तो सेम मैंने उसको चीज़ें बता रखी है कि ऐसे ऐसे मेरे को कंटेंट पसंद होता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मैं टॉपिक्स भेज देती हूँ, वो कंटेंट लिख के वेरीफाई करा के और पोस्ट कर देता है। तो उसी के पास मेरा लॉगिन एक्सेस वगैरह, ही पोस्ट एवरीथिंग। एंड देन थर्ड बंदा जो रिसर्च वाला है, जो मेरे साथ काम करता है रील की स्क्रिप्ट्स पर। तो ये 3 तो मेरे इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा डिजिविसल से मेरे पास एक टीम मेंबर है जो मेरे ब्रांड्स को देखता है। तो ये 4 लोग मैं बोल सकती हूँ कि मेरी कोर टीम है। अमेजिंग। इसके अलावा फ्रीलांसर्स के साथ तो हम काम करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि नया टैलेंट हमें मिल जाए, नई एनर्जी या नए आइडियाज़ कोई हमारे साथ शेयर करे। तो फ्रीलांसर्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा काम करते रहते हैं हम लोग। ब्यूटीफुल। आई थिंक यू केप्ट योर टीम लीन एंड सो दैट यू कैन मेक मोर प्रॉफिट्स। yes kind of, Yeah, I think- but eventually एम ये भी होना चाहिए जब आप एक लेवल्स के बाद कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, जब आपको लगे कि हाँ आपने काफ़ी कुछ बिल्ड कर लिया है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बिल्ड कर रहे हो, आपकी टीम भी आगे बढ़नी चाहिए। तो वो भी हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं आसपास हमारे, तो होता क्या कि एक ही बंदा आगे बढ़ रहा होता है और टीम वहीं की वहीं होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको फील हो कि हाँ नाउ यू हैव डन समथिंग स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ योर टीम, तो टीम को भी प्लीज़ आगे लेके आओ। ब्यूटीफुल। या I think that's a great thought. You should not create wealth for yourself. The biggest leaders of the world also think of wealth creation for their team, which is a great thought there. $1 million question, Neha. How much you charge per brand collaboration, or rather, how much does someone with 1.7 million followers make? ये क्वेश्चन ओके, अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे इसको मैं आंसर करूँ डिप्लोमेटिकली जैसे सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं, सही बात है यार। इतना पैसा छाप रही हूँ कि जितना सीईओ छापता है किसी कंपनी का। नहीं मैं वो आंसर्स नहीं दूंगी। वो आंसर आ चुका है ऑलरेडी। आ चुका है, मैंने नहीं दिया, ये मैंने किसी और इन्फ्लुएंसर की लाइन छेपी एक्चुअली में। नाइस। ओके, सो दिस इज नॉट माय आंसर, मैं आंसर बना रही हूँ। ओके, मैं ब्रेक लूंगी इसमें। वैसे आपने मुझे आंसर्स बता दिए थे, तो मुझे तो पता है मेरे माइंड में क्या है, बट नाउ इट्स फॉर पब्लिक, सो लेट देम नो व्हाट दे वांट टू नो। इट्स अप टू यू। हाँ, बट आंसर क्या करना है वो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं पूछती पॉडकास्ट से पहले ना, आई वांट टू कीप इट रॉ ना वैसे। बट ये क्वेश्चन पूछोगे ये नहीं पता था मुझे। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि 1.7 मिलियन वाला कितना पैसा कमा रहा है? $1 million question. How much you charge per brand collaboration, or rather, how much does someone with 1.7 million followers make? ओके, सो प्रमोशंस के लिए ना, ब्रांड प्रमोशन हो या कोई प्रोडक्ट प्रमोट करा रहा है कोई ब्रांड, तो वो सबसे पहले रेडियो पे जाता था, फिर टीवी पे, फिर आजकल मूवीज़ के थ्रू प्रमोशन हो रहा है। तो टीवी सबसे ज़्यादा हमने देखा है, जहाँ पर हमने एड्स वगैरह देखी है। तो ऐसा कहा जाता है कॉस्ट पर व्यू, CPV, जो टीवी का होता है वो 1 रुपये से कहीं ज़्यादा होता है, 10 रुपये भी होता है कि एक व्यू का जो वो पे करते हैं उनको। अब इन्फ्लुएंसर्स जो है उनमें कई सारी कैटेगरी होती है। हम हैं इंफोटेनमेंट वाले, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली इंफोटेन में ही हम फाइनेंस वाले, कोर फाइनेंस वाले, जहाँ पर
हमें वही देख रहे होंगे जिनके पास पैसा होगा और उस पैसे का वो सोच रहे होंगे कहाँ कैसे सही जगह से उसका यूज़ करें। तो हमारे पास वो ऑडियंस है जो हाई पेइंग है। तो जब भी ब्रांड किसी को पे करती है वो ये चेक करती है कि हाई पेइंग ऑडियंस किसके पास है। तो कोई कॉमेडी क्रिएटर है या कोई डांसिंग क्रिएटर है या कोई मेकअप या ब्यूटी वाला है, उसके पास होगी हाई पेइंग बट परसेंटेज शायद उसके पास कम होगी। तो शायद अगर कोई ब्यूटी 1.7 है, वो फाइनेंस 1.7 से तो कम ही चार्ज कर रहा होगा। कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने आपको बताया कि 1 CPV टीवी पर 10 रुपए की 10 रुपीज़ का CPV उससे ज़्यादा टीवी पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाता है। लेकिन अब हुआ ये कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ही सोशल मीडिया पर है, तो यहाँ पर अब ब्रांड्स को CPV 1 रुपीज़ से भी कम का पड़ रहा है। बट अगेन ये फिक्स कुछ भी नहीं होता है। तो मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ या फिर 10 लाख कमा रही हूँ एक रील का, तो वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त मेरी रीच कैसी है। क्या मेरी वीडियोस पर, एक टाइम था मेरी वीडियोस पर 1-1.5 साल तक ऑन एन एवरेज 1 मिलियन व्यूज़ आ ही रहे थे, तो उस वक्त डेफिनेटली मैं ज़्यादा चार्ज करूँगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हुआ जब मेरी वीडियोस पर ऑन एन एवरेज 6 लाख या 7 लाख ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं तब अपना प्राइस कम रख सकती हूँ। चाहे मेरे फॉलोअर तब भी 1.7 थे और अब भी। तो फॉलोअर से ज़्यादा रीच और आपकी जो कम्युनिटी है उस पर डिपेंड करता है। और ये CPV 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या किसी के लिए 0.3 भी हो सकता है या 0.5 भी हो सकता है। ऑल डिपेंड अपॉन कि किस कैटेगरी की आप इन्फ्लुएंसर्स है और किस कैटेगरी के आपके पास ऑडियंस बेस है। नाइस कैलकुलेट कर सकते हो आप। आंसर मुझे मिला नहीं, बट ठीक है, मैं कैलकुलेशंस करूँगा इसको रख के। बट इंटरेस्टिंग आंसर, डिप्लोमेटिक आपने कहा था, तो एकदम डिप्लोमेटिक आंसर आपने दिया है। बट हैविंग सेड दिस, लेट्स से किसी के पास एक 100K फॉलोअर्स है और उसको एक ब्रांड दी, क्योंकि आप भी एक इन्फ्लुएंसर एजेंसी चलाती है, फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर। लेट्स से आई एम अ फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर एंड आई हैव अबाउट 100K फॉलोअर्स एंड आपने मुझे एक ब्रांड दिया काम करने के लिए, तो आप मुझे क्या पे करेगी? अगेन मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूँगी, किस टाइप का कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, किस क्वालिटी का, और कितना ऑडियंस आपके साथ लॉयल है। तो लॉयल्टी भी चेक की जाती है, वो कमेंट सेक्शन से जाके ही चेक करते हैं। और एवरेज एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है आपका 1 लाख फॉलोअर है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिर्फ एक रील वायरल हुई है जिसपे 25 मिलियन या 100 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से ये 100K फॉलोअर्स हुए हैं, राइट। और बाकी सारी वीडियोस पे हो सकता है 50K व्यूज़ आ रहे हैं या फिर 10K व्यूज़ आ रहे हैं, 5K व्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। बट ऑन एन एवरेज अगर आपके 50K to 100K व्यूज़ आ रहे हैं और आप फाइनेंस का टॉप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 0.5 से 1 रुपीज़ का CPV कॉस्ट पर व्यू रिजर्व करते हो। मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए मैं चार्ज कर सकता हूँ पर रील का इजीली। बट अगेन कंडीशन यही है, एवरेज व्यूज चाहिए होते हैं ब्रांड को और क्वालिटी व्यूज चाहिए होते हैं। ठीक है, आई गॉट द आंसर्स ऑन हाउ मच यू मेक, सो या ओके। थोड़ा फिनांस दिमाग मेरे में भी है, सो आई वर्कड आउट इन माय माइंड ऑलरेडी, Okay, एंड आई एम श्योर पीपल आर वाचिंग विल बी कमेंटिंग ऑन दिस ऑलरेडी। ओके, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे रिलेवेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे रिलेवेंट? लाइक आई सॉ अ रील वेयर यू सेड अंबानी की शादी में जाना हो तो, and you've brought relevancy there. So tell me something about that. तो अमिताभ बच्चन भी रिलेवेंट रहने के लिए अपने बच्चों के साथ, पोती के साथ खेलता है, राइट। तो जब इतने बड़े एक्टर जो इतना सक्सेसफुल है वो रिलेवेंसी के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमें भी डालने होंगे, राइट। तो हम भी काफ़ी एक्सपर्ट्स डालते रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती रहती हूँ रिलेवेंट रहने के लिए, डिफरेंट टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले जब एनिमल मूवी आई थी, बहुत ज़्यादा बज़ में थी वो, राइट, रिसेंट टाइम्स में बहुत कंट्रोवर्शियल थी, काफ़ी सारी मैंने उस पर रील्स देखी। तो जब ऐसे कुछ ट्रेंड चल रहा होता है तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं इसको कैसे फाइनेंस से मर्ज कर सकती हूँ। तो मैंने एनिमल मूवी पे 4-5 वीडियोस बनाई थी, ऑलमोस्ट सारी हिट गई थी। तो उसमें से एक वीडियो थी जो आई थिंक 10-12 मिलियन गई थी या उससे भी ज़्यादा। तो होता ही है कि 2 मिलियन के बाद मैं देखती नहीं हूँ कितनी गई,
क्योंकि मेरा मार्क होता है कि 2 मिलियन हिट हो गए, उसके बाद कितनी जा रही है मुझे नहीं मतलब। 2 मिलियन मतलब मैंने क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस की, अब ऑडियंस के हाथ में है, ठीक है। 2 मिलियन से कम रहेगा तो इसका ना मैंने कुछ कमी छोड़ दी शायद, ठीक है। तो उस वीडियो पर 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। उसमें मैंने लिखा था कि एनिमल मूवी देखने से पहले ये 3-4 चीज़ें कर लो, और मैंने फाइनेंस की चीज़ें लिख दी थी उस पर। तो उससे क्या हो, लोग ना हुक हो गए और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस पोस्ट को कि ठीक है चलो हम एनिमल का नाम सुन के लिखे, लेकिन हमने ये सारे काम कर लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अदरवाइज हमें लॉस हो सकता था। तो इस तरीके से मैं रिलेवेंट रहने की कोशिश करती हूँ कि जो ट्रेंड में चल रहा है, जिस चीज़ों की लोग एक्चुअली में अपने घरों में बात कर रहे हैं, वो अगर उनको हुक के तौर पे मिल जाए तो शायद वो रुक के वो वीडियो देख ले और उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। Amazing. I think very important point that you just shared with us. Do you recommend that creators should sign with agencies to manage them or hire managers to work with brands and opportunities? आई थिंक मैं खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ। मैं नहीं रन करती एक्चुअली, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड रन करते हैं, तो घर की ही कंपनी है। तो और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं हमारे पास, एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ हमारे थ्रू काम करते हैं बाकी ब्रांड्स के साथ। तो एक्सक्लूसिव में हमारे पास आई थिंक 15 थे लास्ट टाइम, इफ आई रिमेंबर, नाउ शायद 25 या 26 है। फाइनेंस की ही हम कोर एक ही नीश में है, हमने 10 जगह हाथ नहीं फैलाए हुए, अभी एक ही नीश में हैं हम लोग। तो अब उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे जैसे जो एकदम स्टार्टिंग से अभी तक साथ बने हुए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं छोड़ के चले गए फिर वापस आ गए हैं। और मुझे खुद, मैं इन्फ्लुएंसर ऐसी हूँ जिसने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर, वन ऑफ द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जिसने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फाइनेंस का कंटेंट बनाना शुरू किया। तो मुझे ऑलमोस्ट हर एक एजेंसी ने अपने अंडर साइन करने का ट्राई किया, राइट। तो अब मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि उस वक्त फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर्स ही कम थे और उनका ध्यान ही नहीं था फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स पर, राइट, है ना। वो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ नहीं थी कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फाइनेंस का कंटेंट व्यूज़ आ रहे हैं, ब्रांड्स आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो वो इतना फोकस्ड हम पे शायद ध्यान नहीं देते। बट क्योंकि अगर कोई एजेंसी है जो आप ही की नीश की है, फूड की है, किसी की भी है, जिसके साथ आप अच्छे से बात करके आपके कंटेंट के बारे में, फर्स्ट ब्रांड डील बाद में आएगी, पहली जो चीज़ होती है वो होती है बॉन्डिंग, राइट। उस एजेंसी के फाउंडर से या उस मैनेजर से आपकी बॉन्डिंग, कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है एज अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट से रिलेटेड हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है बहुत चीज़ों की। ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, पहले तो सही व्यूज़ आ रहे थे अब क्यों नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ गए लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो क्या उनसे आप खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात कर पाते हैं, क्या उनसे ये गाइडेंस ले पाते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, लेट्स सपोज हमारे एक क्रिएटर का ना इंस्टाग्राम बंद हो गया था, कोई गाइडलाइन का कुछ वायलेशन आ गया था, जबकि उसकी वीडियो में कुछ था भी नहीं, 2 दिन के लिए बंद हो गया था, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल पा रहा है कि नहीं? तो आपको पहले इन छोटी, जिनको आप छोटी मान रहे हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि ये सॉर्ट आउट वहाँ पर आपकी हो पा रही है कि नहीं। अगर ये हो पा रही है, आपकी बॉन्डिंग हो पा रही है, देन आप फिर ब्रांड चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक लॉट है, कई सारे इन्फ्लुएंसर जो आपके साथ है, तो ऑलमोस्ट जो जितनी मार्केट में ब्रांड होगी उनके साथ वो काम कर रहे होंगे। और आपका अगर उस वक्त रीच अच्छा आ रहा होगा, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो अगर कोई भी मार्केट में वो ब्रांड कर रहा होगा तो आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल होंगे तो आपका जो नाम है वो कोई पुश नहीं करेगा, है ना, एफर्ट लगा के पुश नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए ज़रूरत है कि कहते हैं ना कि आप एक से भले 2, तो आपके बिहाफ पर पूरा एजेंसी ही काम कर रहा है, जिसको इसी इंडस्ट्री का पूरा नो हाउ पता है कि ये कैसे रन कर रही है, अभी कौन सी ब्रांड जो है वो पैसे रन कर रही है कि नहीं कर रही, किसी ब्रांड का बजट कम है, किसी का ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई ब्रांड से आपको मिल रहा है 70,000, किसी ब्रांड से आपको मिल रहा है 60,000। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड कहाँ पर जाकर अग्री कर रही है, कितना उसका बजट है, कैसा आपका उस वक्त रीच चल रहा है, कैसे आपका कंटेंट का क्वालिटी है। और जब आप ऐसे एक्सपर्टीज लोगों के साथ जुड़ोगे तो आपको सब कुछ पता होगा। आप एक
एक की जो ब्रांड वाली हेडेक है ना, या ये जो सपोर्ट वाली हेडेक है, ये किसी और के कंधों पर शिफ्ट कर रहे हो। सही बात है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस है। और सिर्फ एक को नहीं, वहाँ पर पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है आपकी। जैसे हम डिजिविसल में भी अपने क्रिएटर्स को हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने साथ में कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है पूरा फंड हम कर रहे हैं, मिक्स होता है। कुछ हमने फंड कर दिया, कुछ चीज़ें जैसे स्टे दे दिया या ट्रैवल दे दिया, और कुछ चीज़ें मिक्स साथ में करें। लेकिन एक तरीके से हम सारे जुड़ते हैं साथ में और डिस्कस करते हैं, बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई क्रिएटर ऐसे नहीं फील करता कि यार मेरा कंटेंट नहीं चल रहा है, उसने बताया कि यार तू ऐसे ट्राई करना, तो उसने ट्राई किया, उसको रिजल्ट्स आ गए। तो बस एक डायलॉग मारा उसने कि तू ऐसे ट्राई कर, और उस डायलॉग की वजह से उसका करियर अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, वो चल पड़ा। तो कम्युनिटी की तो जो पावर है वो आपको ऐसे एजेंसीज में मिल पाएगी, वो उसमें अपनापन फील होता है आपको, है ना। अब आप कहोगे कि एजेंसीज में जो फीस चार्ज करे फिर वो ज़्यादा होती है, लेकिन आप ये देखो कि अगर आप अकेले काम करें तो शायद आपको 3 ही प्रमोशंस मिल रहे हो, लेकिन आप क्योंकि आप एक कम्युनिटी में बिल्ड हो चुके हो, आप भले ही आपको 3 भी मिल रहे होंगे, लेकिन आपको 3 वो क्वालिटी वाले प्रमोशंस मिल रहे होंगे, जो ब्रांड क्वालिटी है, कि जो एक्चुअली में ब्रांड्स आपको करनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई मार्केट में कोई ब्रांड आ गई, उस ब्रांड के पास फंड्स है और आपने वो कर दी विदाउट चेकिंग कि उसके ऑथेंटिसिटी है या नहीं, रेगुलेशंस वगैरह, राइट। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अमेजिंग। आई थिंक इन द finance space it makes a lot of difference to be associated with an agency there. How do you define a creator's life cycle? I want to see Neha's point of view. Okay, creators life cycle is very very challenging and interesting. फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि चलो कुछ करने को मिला है। अगर आपकी कुछ वीडियोस चल गई है तो, नहीं चली है तो आप फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि चलो ठीक है ये नहीं चला, ये कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर इज़ ओके, मेंटली ना ठीक होता है। सेकेंड ईयर जब आपको काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी होती है, आपका कंटेंट चल रहा होता है या नहीं भी चल रहा होता, फिर आपको सेल्फ डाउट आने चालू होते हैं, है ना। कि व्यूज़ आ गए तो ब्रांड क्यों नहीं आ रही है, ब्रांड आ गई तो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन मिल गया तो यार नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिला नेशनल अवार्ड मिल गया तो यार मैंने कुछ ब्रांड बिल्ड नहीं की अपने लिए, है ना। वो चलता रहता है माइंड में बहुत ज़्यादा। सेकेंड ईयर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, हौच पौच, वो उथल पुथल हो रही होती है हमारे अंदर कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी रह गया, वो भी रह गया। फिर थर्ड ईयर में हम जाके थोड़ा सा रिलैक्स सा फील करते हैं कि ठीक है 1 by 1 करेंगे, अब हमने ये कर लिया, अब हम ये करते हैं, अब ये करते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर हम बैलेंस आउट होने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर वे में चलने की कोशिश करते हैं। एंड देन फोर्थ ईयर से यू स्टार्ट एंजॉइंग इट एक्चुअली। तब जाकर आपको लगता है कि अच्छा आई एम डूइंग दिस बिकॉज मुझे ये पसंद है, ना कि क्योंकि 3-4 साल बाद आप नहीं कर सकते अगर आपको पसंद नहीं है तो अगर आप 4 साल तक टिक गए हो, इसका मतलब यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस एंड विद योर फुल हार्ट। तो तब आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, सब कुछ फिर in place आता जाएगा। Beautiful. I think very well defined. I really like the fact that you focus a lot on mental health. I see many creators are extremely anxious. Were you anxious in your life too? Yes, because I already told you कि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स नहीं निकला था और मेरी फैमिली में वुमेन स्पेशली काम नहीं करती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था एक्चुअली मेरे सिर पे ना कि यार ये कोर्स भी नहीं निकला है, अब मैं करूँगी क्या। तो उस प्रेशर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी मेरे मन में, एंग्जाइटी थी, पैशन था कुछ करने का। तो उस वक्त मैंने ये सारे फेजेस देखे मेंटल हेल्थ के ना, और उन पे काम करना भी चालू किया। बट ऐसा नहीं कि काम करते करते तुरंत रिजल्ट आ गया, मुझे 5-6 साल लग गए उस स्पेस में आने में जिसमें अब मैं हूँ कि मैं पीसफुली बैठ सकती हूँ। मुझे इतना उथल पुथल नहीं है मन में। है ऑफ कोर्स आई एम वेरी एम्बिशियस, मुझे अभी बहुत चीज़ें करनी है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। कुछ भी हो, हेल्थ हो या फैमिली हो, मैं फिर भी काम कर ही लेती हूँ 1-2 घंटा दिन में, राइट। तो आई एम वेरी पैशनेट। बट जो पहले नेहा थी वो थोड़ी पैशनेट के साथ साथ एंग्जाइटी या बेचैनी वाली थी। अब चीज़ें बदल रही है क्योंकि टाइम दिया मैंने खुद को। और क्रिएटर्स की लाइफ में ये होता है क्योंकि यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट, तो आपको जजमेंट बहुत मिलेगी। और ये करियर नया इतना नहीं है लेकिन फिर भी नया है, स्पेशली योर फैमिली के लिए या आसपास के लोगों के लिए। तो आपको बहुत सुनने को मिल सकता है अपने आसपास से। आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को दूसरे इन्फ्लुएंसर्स से। बहुत ज़्यादा होता है ये कि यार मैं भी तो ऐसे ही कंटेंट बना रही हूँ,
मेरी भी तो ये क्वालिटी है, मेरी भी तो वॉइस क्वालिटी है, अच्छा मेरा बोलने का तरीका भी तो सेम है, देन ऑल्सो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। ये सिर्फ मेरे साथ, ये सबके साथ होता है। वी हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट, बट लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए आई टेंड टू फोकस मोर ऑन मेंटल हेल्थ। जैसे मुझे क्रिएटर से मिलते हैं तो मैं उनसे जनरली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ वाली चीज़ों पर, कि अच्छा तेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, अच्छा ठीक है तू ऐसे कर ले। तो उससे क्या होता है कि उनको थोड़ा अपनापन सा फील आता है, कहीं बड़ी दीदी टाइप का। तो मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं, फिनांस वाली दीदी का सहायता। तो इसलिए आई टेंड टू फोकस मोर ऑन इट। नाइस। हैव यू एवर टेकन थेरेपीज? नहीं यार, उसकी नौबत नहीं आई मतलब थैंकफुली, बट ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Right. I really like the fact that people are so constantly comparing. Yeah. That they are largely seeking validations from people's point of view, whereas in the first initial stage, they got to believe in themselves. And they just need to believe in the power of consistency, because consistency is the mother of all mastery, is what I feel. And eventually consistency gives results. But in the stage of comparison, they forget consistency, and that impacts their mental health a lot. Do you agree? Yes, definitely. And comparison में I want to say one more thing कि हम बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारी जो कंडीशनिंग हुई है बचपन से, वो कंपैरिजन वाली ज़्यादा हुई है। इसको देखो, इसको देखो, तो वही हमारे अंदर ना घुस चुका है, और उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है, आई नो। तो अपने आप पर तरस मत खाओ, अपने आप को ऐसे मत बोलो कि यार तुम्हारे अंदर ये फीलिंग क्यों हो रही है, लेट इट बी, लेकिन उससे बाहर निकलने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है ऐसा है, अब ऐसे कैसे निकलो इससे। That's right. But I also feel the more time we spend on social media, the more anxious we are. Agree? Yes, 100%. ये because on social media we tend to only highlight the positive sides of our life, है ना। क्या अच्छा हो रहा है सिर्फ सब वही दिखा रहे हैं, क्या बुरा हो रहा है वो कोई नहीं दिखा रहा है, और हम एज अ ह्यूमन अपनी लाइफ में जो नेगेटिव हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हो क्या रहा है, सोशल मीडिया की वजह से किसी मतलब पूरे इंडिया की हमें ये सिचुएशन दिख रही है कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, और हमारी जो नेगेटिव माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है सिर्फ कि हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है। तो कितना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो रहे हैं कि यार कपल्स लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे को तो तू प्यार ही नहीं करता है, देखियो यार वो तो उसके साथ ऐसी वीडियोस बना देता है, तू तो मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता। तो ऐसी कन्वर्सेशंस होती है घर में। So true. है ना, और दिस इज वेरी कॉमन। ये नया काइंड ऑफ प्रेशर है कि कपल्स वीडियो बना रहे हैं। मेरा हस्बैंड तो साथ ही नहीं देता है मेरा। अरे नहीं बनाना हस्बैंड को रील तो क्या करना है एक्चुअली में, मतलब my son hates it to the core. He is like how old is he? He's 9 years old. Oh, 9 years old. And he's like हम हॉलीडे पे जाएंगे, एक रूल, आप दोनों रील नहीं बनाओगे। And उसका ये क्लियर रूल है। Oh my God, really? And if we do that, then he says, okay, then I also spend my time on phone. I'll also play games. So I realized that he hates the fact that wherever we go, we just focus on creating content. But they don't understand that's what is helping us make money. Actually, that's our business. That's true. But yeah, that's basically kids do what they see. So yeah. Long format or short format content. I see you have 3.1 lakh subscribers on YouTube. तो आपका focus YouTube पे नहीं है अभी। Actually, I enjoy more Instagram. मुझे वो फिल्मोग्राफी में मज़ा आता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आप ज़्यादा इनोवेट नहीं कर पाओगे, स्पेशली फाइनेंस वाली कैटेगरी में। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट इतना नहीं कर पाओगे जितना मैं शॉर्ट फॉर्म में कर देती हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, डिफरेंट एंगल्स हो गए, ये हो रहा है इधर से, वो हो रहा है उधर से। तो इसीलिए जिसमें मुझे मज़ा आता है मैं वो करती हूँ। हो सकता है यूट्यूब पे इफ़ आई स्टार्ट कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली I'll make a mark 100%. I'm very sure about it. But I don't want to because मुझे मज़ा कहाँ आ रहा है, मुझे मज़ा इंस्टाग्राम पर आ रहा है। Absolutely amazing. You're now a mother, and how are you dealing between motherhood and work? I saw you got Sia on the sets, and you've been handling Sia and the shoot. How do you handle this? Because a lot of mothers think that अब बेबी हो गया, अब मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती या कर सकता एज अ पेरेंट और डैड। सो व्हाट डू यू सजेस्ट और व्हाट डू यू डू इन योर रूटीन? यार ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्मूथली मैनेज कर रही हूँ।
तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ईजी है मेरे लिए, बट समहाउ मैनेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैमिली ओनली। मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मेरी मदर इन लॉ, तो फैमिली की वजह से हैंडल हो जाता है। तो पहली टिप तो यही होती है जो मैंने बाकियों से भी सुनी है, कि फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, कि आप भी आओ और संभालो। अदरवाइज बच्चे को अटैचमेंट तो मदर से ही ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। तो इवन मदर को भी ये होता है कि यार मैं सारे काम छोड़ूं, पहले बच्चे को देखूं, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। बट अगेन हमें ये भी सोचना है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जो वो स्कूल जाने लगेगी, तो तब आपकी लाइफ क्या होगी, राइट। तब आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो उसके लिए यू हैव टू नाउ बैलेंस एवरीथिंग। अदरवाइज जो फर्स्ट, जैसे सिया इज़ नाउ 10 months ओल्ड, तो जो पहले 6-7 महीने दैट वर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम फीडिंग माई सेल्फ टू हर। तो उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, तो आई एम वेरी मतलब सिया से ज़्यादा देर दूर ही नहीं जा सकती, मैक्सिमम 1 घंटा। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है नहा, उसको जो भी छोटे छोटे काम है सब कुछ करना, कि उसने ये खाया कि नहीं, उसने ये किया कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा हम अटैच हो जाते हैं। बट हमें फैमिली को भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि वो भी इन चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो और अटैच हो सिया से। अदरवाइज सिया अब 10 महीने की होगी, अब उसे ऐसा लगता है कि मम्मी दूर क्यों है, वो पास क्यों नहीं है मेरे। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे लगता है देना चाहिए था मुझे। मैंने सब कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस सिया के साथ किया है। बट नंबर 1 टिप, सबको इन्वॉल्व करो। नंबर 2, अपने आप को मत भूलो प्लीज़, क्योंकि 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी आइडेंटिटी का क्या होगा। और नंबर 3, आप प्लीज़ स्लीप साइकिल में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। स्लीप साइकिल मेरी बहुत ही बेकार हो गई थी पिछले 6 महीने में। जब तक सिया 6 महीने के बाद जब से उसने सॉलिड खाना चालू किया, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला है, तो मैं सो जाती हूँ आराम से 8-9 घंटे। और उससे पहले मैं हार्डली 3 घंटे की स्ट्रेट नींद लेती थी, 3-3 घंटे की, 6 घंटे मैक्सिमम। तो बाकी हस्बैंड और सिस्टर तो मैनेज करा ही देती है। Amazing. I think involving families makes a lot of difference, which I think a lot of people, I'm sure, like I live in a joint family, so I don't know how my son grew, despite, Awesome. because it's just so many people to take care of him, right? So, Neha Nagar, the nation wants to know how many brands have you worked with in the last 4 years as an influencer? ओके, मे बी 100+ ब्रांड्स ऑलरेडी। Wow. क्योंकि लास्ट ईयर तक तो आई वॉज मेंटेनिंग अ शीट जिसमें ब्रांड्स और वीडियोस का रील का लिंक डालती थी कि ये ब्रांड प्रमोशन मैंने किया है एंड क्यों किया है वो भी डालती थी मैं। बट रिसेंटली मैंने चेक नहीं किया है वो शीट, मेरी टीम बना रही है उसको। तो आई थिंक 100+ हो गया होगा। Amazing. I think this is a lot of learning for people. That 100+ brands is a lot, and I think I'm very proud of you for that. थैंक यू। I'm happy for you. थैंक यू। Okay, you started DigiWhistle, a finance influencer and tech influencer focused marketing agency. Why a focused influencer agency? Okay, so as I already told you, I was one of the first content creators in short video platform on Instagram और TikTok। तो उस वक्त मेरी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही कम थे स्टार्टिंग के 6-7 महीने में। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गैप फील होता था कि कितना ब्रांड से मिल रहा है और कितना मुझे मिल रहा है, एक्चुअली में पता नहीं होता था। तो जैसे फर्स्ट जो ब्रांड डील्स होती है हम सब लॉस में करते हैं सारे क्रिएटर्स, तो इसमें आप सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ब्रांड दे रही होगी 100 रुपये और एजेंसी हमें 10 रुपये ही पकड़ा रही होगी। तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था, अभी तो शायद सॉर्ट आउट होगी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अब एजेंसीज आ गई बीच में। अदरवाइज जब वो एजेंट्स टाइप के, मतलब जो सिर्फ फ्रीलांसर्स होते हैं, मैनेजर्स, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे करते थे। तो पहले 6 महीने में मुझे ज़्यादा फील होने लगे क्योंकि पहले 6 महीने मतलब इंस्टाग्राम के पहले 6 महीने, तो उस वक्त मुझे ब्रांड इतना मिलता नहीं था। बट 1-2 मिला, मुझे फील हुआ कि ठीक है यार मिल रहा है, ओके, बट इट वॉज नॉट माई फोकस, मेरा फोकस कुछ और था। तो उसके नेक्स्ट जो 1 साल है उस वक्त मैंने काम किया इस तरीके से, मेरे ब्रदर प्रशांत और मैं हैंडल कर रहे थे सारे ब्रांड डील्स को। तो हम इंडिविजुअली काम कर रहे थे। अब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ही थी, हम वन ऑफ द फर्स्ट थे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज था हमारे पास। तो जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स आए तो एक ग्रुप सा बन गया, दोस्ती यारी दोस्ती में। तो लोग पूछने लगे कितना चार्ज करना चाहिए, कैसे कुछ। तो तब हमने डिसाइड किया कि लेट्स एक ग्रुप ही बना लेते ना,
प्रोफेशनली एक ग्रुप बना लेते हैं। अमेजिंग। है ना, तो इस तरीके से प्रशांत ने स्टार्ट किया। फिर मेरे दीपक मेरे हस्बैंड दीपक जो है नहीं वो आपके दीपक है, इट्स ओके। मेरे हस्बैंड दीपक वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म रन कर रहे थे। तो मैं घर पे, मैं और प्रशांत जब भी घर पे होते थे बस कंटेंट की बातें कर रहे थे। तो उनको लगा कि यार मेरा सारा टाइम तो यहाँ पे जा रहा है, तो हमने कहा यार तुम भी आ जाओ। तो दैट्स हाउ ही जॉइंड एक्चुअली। फिर प्रशांत और दीपक और हम तीनों मिलकर, और जो हमारे फ्रेंड्स थे, मैनेज करना चालू कर दिया उनको। अमेजिंग। सो नेहा, यू क्रिएटेड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन योर फैमिली। Yes, kind of. No, you got खुद your से brother. मतलब सोच के नहीं किया, बट वो हो गया। Of course, your brother got employed into Yes, it. yes, Your yes. husband got involved into it. Yes, So I just feel that's a beautiful moment, because it's always the legacy has been dad ka business, but this time it's wife ka business. Yes. या बहन का business. Correct. Right. I think that's a very proud factor, and I think many creators here would also learn that content creation is just not about association with brands, but it is also an opportunity that you create for everyone around you. Yes. Right? Like, I created content and I built my identity for so many years. It gave me an opportunity to build an institute, got my younger brother involved into it, and now he's handling the institute entirely. So content creation is a beginning of an entrepreneurial journey. It's just not about videos and uploading them. What do you think? Yes, definitely. जैसे हमने डिजिविसल ब्रांड को बिल्ड किया, कितने क्रिएटर्स ने कितने सारे ब्रांड्स बिल्ड किए। हमने वो किया जो हमें आता था, या जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा पूरा दिन जा रहा है। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। पहले 5-6 क्रिएटर्स ही थे, फिर धीरे धीरे करके 20 हो गए हैं। तो अब मेरा कोई रोल नहीं है डिजिविसल में। एक्चुअली आई विल बी क्लियर, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड इसको हैंडल कर रहे हैं। बट क्योंकि जैसे आपने बोला कि ब्रांड तो बन गया, अब हम कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ वी हैव अ कम्युनिटी। तो नाउ वी कैन सेल एनीथिंग का मतलब वैल्यूएबल डेफिनेटली, बट कोई ब्रांड बनाकर हम बेच सकते हैं, और ऑडियंस हम पे ट्रस्ट करती है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम ट्रस्ट करती है तो वो सही ट्रस्ट करे। बट हम अब बिल्ड करके, जैसे आपने बोला, एंटरप्रेन्योर वाली साइड पे भी जा सकते हैं, एंड वही मेरा नेक्स्ट एम है। Amazing, beautiful there. Finance influencers, you've been working with so many of them. What's something very common between all of them? I think they are very detail oriented because it's about finance. तो हमें जानना होता है ऐसा है तो क्यों है ना। और वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन आवर कंटेंट। क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के पीछे का रीज़न क्या है, तो पूरा इर्द गिर्द घूम के तब कोई कंटेंट पिक करते हैं जनरली हम लोग, एंड तब उसको अपलोड करते हैं। तो फाइनेंस इज़ ऑल्सो अबाउट ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी तभी आएगी जब आप वही कर रहे हो जो आपने कई सालों से किया है। तो जितने भी मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो मेरे दोस्त है, वो वही है जो फाइनेंस इंडस्ट्री में पिछले 3-4 साल से हो या 5 साल से हो। बस हुआ ये कि कंटेंट क्रिएट करना अभी चालू किया है, बट ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएशन से पहले उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड ही नहीं है। उनका बैकग्राउंड है तभी उन्होंने चालू किया है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है इन्फॉर्मेशन के बारे में कि पर्टिकुलर क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। अमेजिंग। सो नेहा नागर सबकी फेवरेट है, बट नेहा नागर का फेवरेट क्रिएटर कौन है और क्यों? फाइनेंस में मेरा रचना रनडे मैम है। मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ एक्चुअली। शी इज़ अ फ्रेंड एक्चुअली, अब बन गए हैं। तो मेरे को बहुत ही पसंद है उनका नेचर। पहले एज अ क्रिएटर मुझे पसंद थी, नाउ एज अ पर्सनैलिटी मुझे वो बहुत पसंद है। Amazing. तो आई फील वेरी गुड टॉकिंग अबाउट हर। Nice. So some questions here. Finance influencers are paid to recommend stocks, myth or fact? आई थिंक सम डू, And that's wrong. दैट्स रॉन्ग 100%। बट कुछ लोग करते हैं, जो हमने रिसेंटली भी देखा है, और उनके अगेंस्ट में हमने वीडियोस बनाए, नाम लेके नहीं बनाई, बट हमने वीडियोस या स्टोरीज डाली थी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो ऑडियंस को भी पता है कि अगर कोई एक क्रिएटर है, वो एक स्टॉक के बारे में
आईपीओ के बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है वही सेम चीज़ें 5-10 इन्फ्लुएंसर्स और बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई कैंपेन आया है और उस कैंपेन के अंडर वो उस स्टॉक की इतनी तारीफें कर रहे हैं या फिर उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़ डबल श्योर हो जाओ, जो भी आप कंटेंट उससे ले रहे हो। मान लो आपने वीडियोस देख ली, उनकी वीडियो देख ली आपने, ठीक है, आपने उससे इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन पर कितना ट्रस्ट करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ डबल चेक करें एंड देन अपने इन्वेस्टिंग के कोई डिसीजंस को आप ले। Amazing, like how you decode scams. Yes. This is one of the biggest scams that you just decoded right now. And I think a lot of them should learn कि just because 10 लोग स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो ना करें, बिकॉज आपके पैसे वहाँ पे डूब रहे हैं। बहुत ईजी हो गया एक्चुअली स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स है जो सोशल मीडिया पर आकर एजुकेशन ले रहे हैं, है ना। आप एजुकेशन के फॉर्म पर आधे से ज़्यादा जो क्रिएटर्स है वो एजुकेशन के साथ साथ रिकमेंडेशन या एडवाइस भी दे रहे हैं। अब उन एडवाइस में से हो सकता है 90% वो सही गुड फेथ में दे रहे हैं, बट 10% ऐसे भी होंगे जो वो जो एडवाइस दे रहे हैं उसके पीछे कोई मोटिव होगा, या तो उनको पैसे मिले हैं या उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किया है या कोई भी रीज़न हो, राइट। तो इसीलिए अब हमारी ड्यूटी ज़्यादा बन जाती है कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लो, बस इन्फॉर्मेशन लिया है कि ठीक है ऐसे 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 ये कंपनी ये करती है, ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, अब वो एक्चुअली बढ़ा है कि नहीं, उस पर आपको डिसीजन लेना है कि नहीं, वो आपको पूरा रिसर्च प्रोसेस करके ही जाके अपना डिसीजन लेना है। Investing in real estate is the best thing to do as it grows faster. Myth or fact? इट डिपेंड्स, इफ़ यू हैव दैट मच कैपिटल और आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो यू शुड इन्वेस्ट, और रिटर्न्स फास्टर तो नहीं कह सकते, लॉन्ग टर्म में ही मिल सकते हैं आपको। तो फास्टर में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी है कुछ एरियाज़ में, लेकिन उतना ही रिस्क भी है। तो हायर रिस्क हायर रिटर्न, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप वेट कर सकते हो पेशेंस के साथ, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, अच्छे भी 10-12%। Cool. Social media makes people jealous. Myth or fact? फैक्ट, जब हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में और वीडियोस को देखकर, और फिर कंपेयर करते हैं कि अच्छा इनके यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ कैसा है। तो कंपैरिजन तो हमारे दिमाग में पहले से ही फिट कर दिया गया है सोसाइटी ने, और सोशल मीडिया की वजह से हम दूसरों के घरों में झांक रहे हैं। तो दूसरों के घरों में झांक रहे हैं तो फिर अपने घर की तरफ भी देखते हैं, देन कंपैरिजन तो होगा ही, इनसिक्योरिटीज भी आएंगी। राइट, पहले तो हमारा कंपैरिजन नेबर्स के साथ होता था, या तो पूरे देश के नेबर्स के साथ हो रहा है। और कितनी कैटेगरी के लोग हैं, है ना। सही बात। अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, पढ़े लिखे भी है, हर टाइप के लोग हैं सोशल मीडिया पे, तो हम कंपेयर इजीली करने लग जाते हैं। सो ट्रू। व्हाट्स योर टॉप 3 एडवाइस टू 18 to 24-year-old guy with respect to investment? यू नीड टू मेक योर फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले सॉर्टेड होना चाहिए कि प्लान, मैं अभी यहाँ हूँ, 18 एज पर हूँ, मुझे जाना है, मान लो 40 की एज पर आपको रिटायर होना है, या आपको उस वक्त 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ आप कैसे अचीव करोगे, उसका प्लान बनाना ज़रूरी है। कि 2 साल बाद आपको MBA करनी है, 3 साल बाद आपको गाड़ी लेनी है, 5 साल बाद आपको घर लेना है, कितना अमाउंट चाहिए होगा, उसकी प्लानिंग का मतलब है कि आप एटलीस्ट प्लान बनाओ एक्सेल शीट पे कि ऐसे ऐसे करोगे। देन जब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको लाइफ में यहाँ से यहाँ जाना है, जब आपको रास्ता पता लग गया है तो किस गाड़ी पे बैठ के जाना है वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, आप सॉर्ट आउट कर लोगे, बट एटलीस्ट पता तो करो कि जाना कहाँ पर है। फिर दूसरा है कि आप इन्वेस्टिंग इसीलिए मत चालू करो कि बाकी लोग कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि नहीं। हो सकता है जितने फंड्स आपके पास है उस फंड्स को इन्वेस्ट कर कर आप कोई और अच्छी बेटर स्किल सीख लो जिससे और अच्छा रिटर्न कमा लो। तो ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या बॉन्ड रियल एस्टेट ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। आपकी स्किल, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इन पर पहले इन्वेस्ट करो एंड देन आप बाकी चीज़ों पर इन्वेस्ट करो। एंड थर्ड, जब आपका ये सब सॉर्टेड हो जाए, प्लान बना लिया आपने, खुद पर इन्वेस्ट कर लिया और अब आपके पास फंड्स बचे हुए हैं, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो इन्वेस्टिंग। और आप सुनो मत दूसरों की, खुद की भी रिसर्च करो,
है ना, वीडियोस में नज़र आ रहा है सब टाटा टाटा की बात कर रहे हैं, है ना, मेरे आस पड़ोसी लोग सब टाटा पावर की बात कर रहे हैं, बट क्या आपको वो सही लग रहा है? तो आप रिसर्च करो एंड देन ही आप इन्वेस्ट करो. Amazing. There's a last question of the evening. And the question is, what are top 3 mistakes people make in investment? सबसे पहला, हम स्टार्ट ही नहीं करते, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं. मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनके बैंक अकाउंट में मोटा पैसा पड़ा हुआ था, मोटा मतलब बड़ा अमाउंट पड़ा होता है. वो सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, पहले कमाने पे ध्यान देते हैं. बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जितना जल्दी वो इन्वेस्टिंग चालू करेंगे उतना जल्दी आप रिटायर होने का सोच सकते हैं, उतना जल्दी आपको और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं कंपाउंडिंग की वजह से. सबसे पहली मिस्टेक ये है जो लोग करते हैं. दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं. जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट समझ में आने लग गया तो वो सारा पैसा वहीं लगा देगा. पेरेंट्स की सुन ली रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो ज़्यादातर पैसा वहीं लगा दिया. तो हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, तो वो भी आपको मिस्टेक से बचना है. तीसरा है कि हम प्लान्ड वे में, जैसे मैंने फाइनेंशियल प्लान की बात करी, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करते हैं. हमारे पास फंड्स है और हमने वो कहीं इन्वेस्ट कर दिए, मान लो 5-6 जगह. डाइवर्सिफाई भी किया है और इन्वेस्टिंग जल्दी भी चालू की है और इन्वेस्टिंग कर भी रहे हैं रेगुलरली, लेकिन गलती ये कर रहे हैं कि अब हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं कि 3 साल बाद मुझे फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ. 5 साल बाद घर लेना है, उसके लिए तब इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इन्वेस्ट करूँ. तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं हम. तो ये भी एक बड़ी गलती है. सुनने में लगेगा, देखने में लगेगा कि हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, रेगुलर कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं रिसर्च करके, बट अगेन फिर ये मिस्टेक कर दोगे आप. तो तीनों ही मिस्टेक अवॉइड करनी है. Amazing. You know, the way the knowledge flows in the finance space shows the amount of PhD that you have done in this subject. Neha Nagar, thank you so much for doing this podcast. Every minute of this podcast has been so insightful, so deep. I'm sure this is like a book for many of them who's going to watch this to grow their influence. So thank you for growing your influence. Thank you for helping so many of them in growing their influence. And I like the way how we both are conversing and your camera angle skill is constantly watching that camera, and I've never watched this one. Okay. Which shows that you're really talented with your camera skills. So thank you so much for being part of the show. Thank you so much, Sorav. I thoroughly enjoyed this conversation. Thank you. Pleasure. So ये थी नेहा नागर की जर्नी. हमेशा क्या होता है कि एक आदमी एक बिजनेस चालू करता है और एक औरत उसे सपोर्ट करती है, और इस जर्नी में एक औरत ने बिजनेस को चालू किया और उनका हस्बैंड उन्हें सपोर्ट कर रहा है. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, isn't it? आज की इस इंस्टाग्राम की दुनिया में कोई भी अपनी पहचान बना सकता है. ऐसे कई सारी स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. और आप किसे देखना चाहते हैं मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, प्लीज कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, और आपका बिगेस्ट लेसन क्या है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से वो भी नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा. मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा. थैंक यू.